Very good attention towards me. As you, after a very long period of time, we met again in these community classes. I have taken you 1-2 classes of your community class. My students, as you know that from the online classes, we have reached up to the 5th chapter of your syllabus. We have completed 5 units of your syllabus up till yet. And nowadays we are dealing with your very good important topic which includes in your syllabus, that is communalism. As you all know, communalism, communal means pertaining to community. Communalism pertains to community. Communal. Understand? This is English. I am trying to understand you what is communal. Communalism, community. These all are related with each other. Community, communalism, all these things are related with each other. And we are teaching, as I have told you, that communalism is an ideology which tries to encourage religion, ideas of one religion among the people, and which are totally against the idea of other religions. As I told that communalism means supremacy of one religion over the other religion. Understand? एक मजहब की इजारादारी है दूसरे मजहब. एक मजहब ये कोशिश करता है कि मेरा मजहब आगे बढ़े, दूसरे मजहब को नीचे दिखाने के लिए मेरा मजहब ही अच्छा है. दूसरा बोलता है मेरा मजहब ही अच्छा है. As you know, India is a very big country. There is a very big country, very big. It's a vast country. Because it is a subcontinent. India is a subcontinent. There are 29 states existing in our India. 29 states are existing in our India. And there are so many religions. And Hindu are at the top. And there are 87% of the population of India, which is the second largest country in the world, are Hindus. Isn't it? Yes, sir. 87% of our population of India are Hindus. The second number comes Muslims. After that we have Jains, we have Buddhas, Christians. We can say this is the universe of religions in our India. And every religion has its supremacy. Everyone is feeling better in India. My dear students, after partition, when India and Pakistan become partial with each other after 1947, after independence, we have seen so many riots, rebels. One religion shed the other religion's blood. Hindu and Muslim. This Tasam this right is from 1947. So many blood have been lost. Hindus shed the blood of Muslims, and Muslims try to shed the blood of Hindus. And this is going on from 1947. This is communalism. On the basis of religion, these things are happening. And these things are happening nowadays also. You are seeing. Go through the media. Go through the body media and see what is going on here. This communalism. On the basis of communism, how many criminals, how many deaths are going on? What I mean to say that there are so many reasons behind this communalism. As I have told you that there are geographical causes also for this communalism in India. Geographical cause. There are psychological causes because Hindu and Muslim. There are social causes. I want to define the social cause here. We are slaughtering cows. हम गाय को मारते हैं और इसका गोश्त खाते हैं. मुसलमान लोग जो हैं गाय को मारते हैं और इसका गोश्त खाते हैं. मगर हिंदू मजहब के लोग गाय को बहुत पवित्र मानते हैं. इसको गौ माता बोलते हैं, इसको माई बोलते हैं, इसको मागी बोलते हैं, इसको मां बोलते हैं. The religion of Muslim, they have recommended that they can slaughter cow. वो गाय को मार सकते हैं और उसका गोश्त खा सकते हैं. मगर हिंदू में यह हराम है, हिंदू नहीं कर सकते हैं. This is the social difference. This is the social cause. Just like we are doing sacrifice
on this Eid al-Zuha. Hindus are opposite of that. Nowadays, आपने पिछले परसों सुना होगा कि हम अजान देते हैं, मुसलमान लोग अजान देते हैं 5 टाइम दिन को अजान देते हैं और हिंदू इसके मुखालिफ है। वो बोलते हैं कि हमें नींद में खलल पड़ जाती है, अजान देने से हमें नींद में खलल पड़ जाती है, यानी कि दूसरे मजहब के सेंटिमेंट्स को वो किल करते हैं, दूसरे के मजहब को वो किल करते हैं। मजहब इनकी इजाजत देती है कि 5 टाइम वो प्रे कर सकते हैं, इनके अजान दे सकते हैं, 5 टाइम वो अजान दे सकते हैं, मगर हिंदू लोग बोलते हैं हमें नींद में खलल हो जाती है। जी डिफरेंस एंड दिस इज कम्युनिज्म, और वो इस चीज को कम करना, हिंदू लोग इसको कम करना चाहते हैं, मुसलमान को अपने मजहब पर चलना चाहते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कम्युनिज्म जो है और हिंदुस्तान में ज्यादा ही है। अब हिंदुस्तान में इसका ज्यादा ही बीज जो है, इसके रूट जो है ज्यादा ही डीप हो गए हैं। अब हिंदुस्तान में कम्युनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द लीडर्स आर डिमांडिंग वोट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कम्युनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो मजहब की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिस थिंग जो है वो कम्युनिज्म को, और इन चीजों से हमें जो है सोशल डिवीजन इन द सोसाइटी हमें हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सोशल डिवीजन। आज आप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमारे हिंदू कहां है? उन्होंने अपने आप को यह ताफुज समझा कि वो यहाँ पर मेरे ख्याल क्या पता क्या नहीं है, क्या सेफ्टी है, इनको वहां पर फैसिलिटी दो, और हिंदू लोग यहाँ पर नहीं है। आज आप कोई हिंदू यहाँ पर नहीं देख सकते हो। तो यह कहने का मतलब यह है कि कम्युनिज्म सेज दैट वन पर्टिकुलर रीजन इज सुपीरियर। एक मतलब चाहता है कि तो इस कम्युनिज्म की वजह से सेपरेटनेस आ गई है। वो चाहते हैं कि अलग हो जाए, हम अलग चाहते हैं, सेपरेट, हमें सेपरेट स्टेट दी जाए। जिस तरह आपने देखा इसी की वजह से यहां पर पंजाब में वो खालिस्तान बोलते थे हमें दे दो ऑन द बेसिस ऑफ देवर डिमांडिंग द खालिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो सिख थे वहां पर, उन्होंने बोला इस्लाम कश्मीरी कहते हैं कि कश्मीरी यहाँ पर मजहब, यहाँ पर हिंदुस्तान, ये हम मुसलमान यहाँ पर ताफुज नहीं समझते हैं कि वी आर नॉट फीलिंग बेटर इन अवर इंडिया एंड दैट इज व्हाई वी डिमांड सेपरेट स्टेट। इस तरह अलग अलग स्टेट, फियर ऑफ लूजिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर फियर ऑफ लूजिंग, मुसलमानों को यहाँ पर जो यहाँ पर आपको पता है मेजॉरिटी इज पावर, मेजॉरिटी कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, सब जगह पर मेजॉरिटी है। तो इसकी वजह से फियर ऑफ लूजिंग, जो कम है, जो माइनॉरिटी में होंगे, दोज पीपल हु आर इन माइनॉरिटी दे हैव फियर ऑफ लूजिंग। इनको पता है कि हमें ले जाएंगे। अश्नीय प्राथमिक चीज मुसलमान सकल माइनॉरिटी में वो दे विल फील दैट हमें मस्जिद में जाने से रोकेंगे, हमें कुर्बानी करने से रोकेंगे, है ना, हमें दाढ़ी रखने से रोकेंगे, बोलेंगे कैसा करो वैसा करो, ये फियर ऑफ लूजिंग। तो इस कम्युनिज्म की वजह से ऐसी ऐसी चीजें का इंकशाफ होता है, फियर ऑफ हेट एंड कंटेम्प्ट। इसकी वजह से यहां पर यह होता है कि एक दूसरे पे नफरत पड़ जाती है, कम्युनिज्म की वजह से नफरत हो जाती है। हिंदू अगर होगा वो मुसलमान को नफरत करता है, और मुसलमान जो है वो हिंदू को नफरत करता है। आप देखें कि आज के इस कम्युनिज्म की वजह से क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या यहां पर हो रहा है। इस कम्युनिज्म वो सिर्फ दिस इज ओनली नाउअडेज गवर्नमेंट। तो वो ये वजह है कि आज इस कम्युनिज्म की वजह से हिंदुस्तान में जो है, तो इससे हमें यह भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई मजहब ये नहीं चाहता है कि, अदरवाइज इंडिया वाज अ सेकुलर स्टेट, हमें यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। यहाँ पर हर एक मजहब को अपनी अपनी आजादी है, हर एक मजहब को अपनी he can enjoy his religion as per religious beliefs are concerned, rituals are concerned, he can adopt his because of the secular state. But nowadays it is going on, this communalism is going on. इसके जो रूट है they are dependent, इसके रूट जो है ज्यादा गहरे हो रहे हैं। So this was all my topic of today, that communalism. I think it is, I was going to take another topic of today, that is regionalism, region, R-E-G-I-O-N-N-A-L-I-S-M, regionalism. I was going to take this topic nowadays. मैं आपको थोड़ा बहुत इसको हिस्ट्री देना चाहता हूँ। After that I was going to tomorrow inshallah Ramadan, in the coming class I will talk about this religionism. That is all for